Hi everyone, today we're talking about renal tubular processing and will be primarily focused on our distal convoluted tubule and also the collecting duct. Right. So starting off, it's important for me to clarify शुरू में कि ये हमारा ascending limb of loop of Henle था जो impermeable to water था, right? When you talk about distal convoluted tubule, उसके भी दो aspects होते हैं. एक early part of the distal convoluted tubule होता है और एक late part of the distal convoluted tubule होता है. जो early part of distal convoluted tubule है, that is very much similar in function and structure to the ascending limb of loop of Henle. ठीक है. और जो distal part of collecting tubule है, that is very much similar to the cortical part of the collecting tubule. Collecting tubule का भी cortical और एक medullary part है. Right now these two cells that I'm showing, these are of the early distal convoluted tubule. You may be wondering कि नहीं ये तो मैंने late distal convoluted tubule में बनाया है. हाँ, drawing थोड़ी सी इस तरह की हो गई है, but this is also the part of the early distal convoluted tubule. और late distal convoluted tubule के cells आगे ये हैं. ठीक है. Okay, so early distal coronary tubule में we have this very important macula densa जो कि हमारे सोडियम क्लोराइड का सेंसर भी है. सेंस करता है कि अच्छा कितना आ रहा है. अगर सोडियम क्लोराइड ज़्यादा आ रहा है दिस मीन्स के जीएफआर कम है. ये ज्यूम कर लेते हैं जीएफआर कम है, जीएफआर ज़्यादा है. अगर सोडियम क्लोराइड ज़्यादा आ रहा है so it assumes कि GFR is very high and it is unable to be absorbed, it's unable to be reuptaken. क्योंकि GFR high है तभी तो सोडियम क्लोराइड इतना ज़्यादा आ रहा है, right? This is what they're saying. So let's read this कि अगर सोडियम क्लोराइड ज़्यादा आ रहा है this means GFR is high. This is what it assumes. और ये मैक्यूला डेंसा क्या करता है, ये सब कुछ सेंस करने के बाद ये जक्स्टा ग्लोमेरुलर हमारे पास सेल्स पढ़ते हैं उनको कहता है कि आपने रेनिन स्क्रीट करना है या नहीं करना, फिर इफ एन आर्टिक्यूलर कंस्ट्रक्शन करानी है या नहीं करानी. दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस प्रीवियसली. आई एम नॉट गोना गो इनटू डिटेल्स ऑफ दैट, बट यू कुड रीड दिस. ठीक है. अच्छा, ये मैक्यूला डेंसा cells तो हो गए which are present at the junction of the ascending limb of loop of Henle and the early distal convoluted tubule. अब इसमें कोई very important cells we have are these जिसमें we have sodium chloride co-transporter and then you have this calcium channel. ठीक है. इसकी बात करते हैं. उससे पहले एक brief overview of this also कि हमारे जो distal convoluted tubule है इसका जो late segment है उसमें you have intercalated cells and the principal cells. Also the cortical collecting tubule has the same cells. अब intercalated cells, these are fewer in number compared to principal cells which are very high in number, right? So abhi this is drawn out of proportion but they all are obviously similar in size, lekin their function is different and the structure might be slightly different as well. Our principal cells are way more in number compared to intercalated cells. So now we have established ये हमारा early part of distal convoluted tubule है जिसमें you have macula densa and you have these two cells which have sodium chloride co-transporter and calcium channel, जबकि late part of distal convoluted tubule में you'll have intercalated and principal cells. उनके भी अपने अपने फंक्शंस हैं. अच्छा, अब इधर वेरी इंपॉर्टेंट यू हैव दिस सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर. ये क्या करता है, ये सोडियम और क्लोराइड को रीअपटेक करता है. हमारा मैक्सिमम जो सोडियम रीअब्सॉर्प्शन था वो 65% शुरू में हो गया था. ठीक है, वाटर के साथ ही. फिर यहाँ हमारा सोल्यूट्स जो थे वो मेनली अंदर आ रहे थे, बाहर नहीं जा रहे थे, इफ यू कैन रिकॉल, क्योंकि ये हाइपर ऑस्मोटिक कंडीशंस थी. तो यहाँ हमारे कोई भी सोडियम का रिलीज नहीं हुआ, कोई भी सोडियम का मतलब नथिंग हैपेंड, और सोडियम अंदर आ रहा था इनफैक्ट. सो रीअब्जॉर्प्शन सोडियम की नहीं हुई. यहाँ आकर हमारी 25% ऑफ द सोडियम रीअब्जॉर्प्शन हुई, लेकिन ये सेगमेंट वाज इम्पर्मिएबल टू वाटर, इफ यू कैन रिकॉल. ये वाटर को इम्पर्मिएबल था लेकिन सोडियम की यहाँ भी 25% रीअब्जॉर्प्शन हो गई. तो दिस इज अराउंड 6 7 8 एंड देन 9, तो 90% हमारी रीअब्जॉर्प्शन हो गई. अब हमारे पास 10% सोडियम रह गया. वो 10% सोडियम 5 to 6% इधर रीअब्जॉर्ब हो जाएगा और बाकी विल सी आगे. ठीक है. अब वही 5 to 6% will be reabsorbed here. ठीक है. So that sodium and chloride they got reabsorbed, और यहाँ you have sodium potassium ATPase pump जो कि इन्हीं सोडियम को kicks them out and brings the potassium in. And here we also have a calcium channel. ये calcium channel क्या करता है, ये calcium को reuptake करता है. So any calcium that's left out here, तो उसको ऊपर लेकर जाने में ये मदद करता है, right? And then you have your sodium calcium exchanger. अब कैल्शियम अंदर ज्यादा आ गया, वो कैल्शियम को ब्लड में फेंक देते हैं और सोडियम को अंदर लेकर आते हैं, राइट? अदर देन दैट यू आल्सो हैव कैल्शियम एटीपीएस. ये कैल्शियम एटीपीएस क्या करता है, दिस यूजेस the energy which is present then and there, and then it pumps calcium outside in the blood. Now when we talk about parathyroid hormone, so parathyroid hormone क्या करता है, parathyroid hormone डिटेक्ट करता है कि ब्लड में कैल्शियम के लेवल्स कम है, एंड देन इट स्टार्ट्स रीअब्सॉर्बिंग कैल्शियम. ये भी था ना, एक तो ये विटामिन डी को भी एक्टिवेट कर रहा था, गट से जाकर जीआईटी से जाकर कैल्शियम का रीअपटेक बढ़ा रहा था. दूसरा ये क्या कर रहा था, ये किडनी से कैल्शियम की रीअब्सॉर्प्शन को बढ़ा रहा था, एंड देन इट हैड आल्सो इट्स थर्ड फंक्शन. सो व्हेन यू टॉक अबाउट किडनीज वाला वाला पोर्शन, राइट, तो उसमें यही वाला
पार्ट है कि अर्ली डिस्टल कॉर्नियल ट्यूब्यूल में, सो डिस्टल कॉर्नियल ट्यूब्यूल में पैराथायरॉयड हार्मोन हमारे पास रिसेप्टर पर है. देयर पैराथायरॉयड हार्मोन कम्स एंड अटैचेस एंड देन इट स्टिमुलेट्स द जी प्रोटीन, द जी स्टिमुलेटरी प्रोटीन. वो जाकर आगे क्या करता है, एडिनाइलिल साइक्लेज को एक्टिवेट करता है, दैट कन्वर्ट्स एटीपी टू कैम, एंड कैम get goes and activates the protein kinase A. Protein kinase A, it encodes for certain proteins. And what are these proteins exactly? These are these proteins. कैम जाकर फॉस्फोराइलेशन कराएगा ना, ये प्रोटीन काइनेज ए को स्टिमुलेट करेगा, ये फॉस्फोराइलेशन कराएगा ऑफ सर्टेन प्रोटीन्स. व्हाट आर दोस सर्टेन प्रोटीन्स? दोस आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? के व्हाट हैपेंड के parathyroid hormone receptor is coupled intracellularly with G stimulatory protein that is going to stimulate adenylyl cyclase, which will convert ATP to CAMP. ये CAMP जाकर protein kinase A को stimulate करेगा, ये phosphorylation कराएगा of certain proteins. कौन से proteins हैं वो? Those are calcium sodium exchanger और calcium ATPase, जो कि हमारे basolateral surface पर लगे हैं. अब जब इनको ये एक्टिवेट करेगा तो ये तो बहुत ज़्यादा एक्सेलरेट हो जाएंगे एंड दे फंक्शन वेरी क्विकली. और जब ये फंक्शन करेंगे बहुत फास्टली, so the cell will keep becoming calcium poor because these are pumping calcium out, right? तो जब calcium are being pumped out और ये cell calcium poor हो रहा है, तो फिर यहाँ से easily calcium channel से a lot of calcium is going to flow in. So this is basically the mechanism, the entire mechanism of your parathyroid hormone, and very important for you to know. अगर पूछा जाए parathyroid hormone क्या करता है, so now we know कैल्शियम लो होता है, उसको डिटेक्ट करते हैं, देन इट इंक्रीज कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन इन द किडनी. नाउ वे एग्जैक्टली डिस्टल कॉर्नियल ट्यूब्यूल, उसका पूरा मैकेनिज्म ये है कि वो ये पूरे मैकेनिज्म से पीके को स्टिमुलेट करता है, फॉस्फोराइलेशन होती है ऑफ प्रोटीन्स, व्हिच प्रोटीन्स एग्जैक्टली दीज टू प्रोटीन्स, ठीक है. और कैल्शियम एटीपेज और कैल्शियम एक्सचेंजर, सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर, दे वर्क वेरी फास्टली और कैल्शियम बाहर पंप होता है, दिस बिकम्स कैल्शियम पुअर एंड देन कैल्शियम चैनल से बहुत ज्यादा कैल्शियम अंदर आता है, ठीक है. नो इन टॉक अबाउट सोडियम क्लोराइड, इसका तो कोई इतना स्पेशल देयर इज एनी स्पेशल रोल. हाँ, ये सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन कराना था एंड देयर इज एनी रॉकेट साइंस इन्वॉल्वड हियर. लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो थायराइड्स. थायराइड्स क्या है? दिस आर आल्सो डाययूरेटिक्स. एक तो हमने लूप डाययूरेटिक्स पढ़े थे जो इनको इनहिबिट करे थे. थायराइड्स किनको इनहिबिट करे? इनको. इफ दे आस्क यू अ क्वेश्चन कि व्हिच ऑफ देम इज अ मोर पोटेंट डाययूरेटिक, सो द आंसर वुड बी लूप डाययूरेटिक. क्यों? क्योंकि यहाँ around 25% of the sodium is reabsorbed. तो सोडियम 25% ऑफ सोडियम को रीअब्जॉर्प्शन को ये इनहिबिट करता है, तो ये ज्यादा पोटेंट डायरेटिक होगा. जबकि इफ यू टॉक अबाउट दिस, तो दिस इज गोइंग टू इनहिबिट 5 to 6% ऑफ सोडियम रीअब्जॉर्प्शन, जो कि इतना बिग डील नहीं है, राइट. अच्छा, थायराइड क्या करता है? सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन को, क्लोराइड की रीअब्जॉर्प्शन को तो इनहिबिट कर रहा है, लेकिन अ गुड डॉक्टर विल आल्सो नो अनदर थिंग व्हिच इज अबाउट कैल्शियम, कि कैल्शियम के साथ क्या हो रहा है. यहाँ कैल्शियम को क्या हो रहा है? दिस इज अ हाइपो, दिस हाइपो, एक्चुअली लेट्स से हाइपर कैल्सियूरिक, और यू कुड से कैल्सियूरिक ड्रग. बेसिकली दिस इज कैल्सियूरिक ड्रग. ये क्या करे? हाइपोकैल्सीमिया करा रहा था. हाइपोकैल्सीमिया कैसे करा? यूरिन में कैल्शियम ज्यादा एक्सक्रीट करा था. कैसे? क्योंकि ये सबको इनहिबिट करा था. ये जब ये सब इनहिबिट हो रहा है तो पोटेशियम भी बाहर नहीं आएगा, पॉजिटिविटी नहीं होगी, कैल्शियम अंदर किक इन नहीं होगा, और ये कैल्शियम सिक्रीट आउट होगा. सो बेसिकली कैल्सियूरिक ड्रग था ना हमारे लूप डायरेटिक्स. सो दोज पीपल जिनमें हाइपर कैल्सीमिया हो, क्योंकि कैल्शियम लेवल्स बॉडी में बहुत ज़्यादा है, उन्हें लूप डायरेटिक्स ऐसे इंजेक्ट कर दिए जाते हैं ताकि कैल्सियूरिक ड्रग है ये, और यूरिन में कैल्शियम को रिलीज आउट करेगा. जबकि थायराइड उन लोगों को दिया जाता है जिनमें किडनी स्टोन्स की बहुत ज़्यादा हिस्ट्री होती है, फेमिलियर किडनी स्टोन्स होते हैं. व्हाई, व्हाट डज दिस डू? दिस डज क्वाइट द ऑपोजिट थिंग. क्या करता है ये कैल्शियम को रिटेन करता है बॉडी में, कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन को इनहांस करता है. ये कैल्शियम के लेवल्स को बॉडी में डिक्रीज करता है और ये कैल्शियम के लेवल्स को बॉडी में इंक्रीज करता है. या तो आप ऐसे कर सकते हैं कि ये ज़्यादा से ज़्यादा कैल्शियम को एक्सक्रीट करता है यूरिन में, और ये कम से कम कैल्शियम को एक्सक्रीट करता है यूरिन में, ज़्यादा को रीअपटेक करता है, ठीक है. दैट वुड बी अ बेटर थिंग फॉर यू टू अंडरस्टैंड. ये एरोज को याद कर लेना, ठीक है. नाउ व्हाट हैपेंस इज दैट कि जब ये इनहिबिट होगा, सो व्हाट विल हैपन? अगर ये इनहिबिट हो गया तो यहाँ सोडियम कम होगा. जब यहाँ सोडियम, दिस विल बी सोडियम पुअर, क्योंकि ये इनहिबिट हो गया. जब सोडियम ये पुअर होगा, सो व्हाट विल, और ये भी काम कर रहा है ना, दिस इज ऑल्सो वर्किंग. सो सोडियम यहाँ सेल के अंदर तो कम्प्लीटली सोडियम पुअर. जब सोडियम पुअर होगा तो ये बहुत फास्टली एक्ट आउट करने लग जाएगा. सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर की पूरी गेम है, ये बहुत ज्यादा तेज काम करना पड़े लग जाएगा, क्योंकि ये सोडियम पुअर हो गया. सोडियम को बहुत तेजी से अंदर फेंकेगा ताकि एवरीथिंग इज रेगुलेटेड, और कैल्शियम को उतनी ही तेजी से बाहर फेंकेगा. तो अब हमें उतना ही तो कैल्शियम चाहिए, और इसको फास्ट काम करने के लिए वी नीड मोर कैल्शियम फ्रॉम हियर. so that's how this takes up calcium. तो वही बातें इधर भी हो रही हैं. लेट्स सी दैट.
कि sodium chloride co-transporter, it is blocked by thiazide diuretic, which is a weaker diuretic compared to loop diuretic, and also it's under the influence of not this, but we're just talking about in general कि parathyroid hormone, आगे से parathyroid hormone की बात हो रही है. अब thiazides की बात करते हैं. Thiazides on basolateral surface. On basolateral surface, calcium ATPase transport actively transport calcium out of the cell, making the cell calcium deficient. And you also have calcium sodium exchanger जो कि cell को मज़ीद calcium deficient कर रहा है. लेकिन luminal surface में हमारे पास calcium channels हैं which bring calcium into the cell and everything is regulated. अब thiazides क्या करते हैं? Thiazides they cause natriuresis क्योंकि ये sodium chloride transporter को co-transporter को inhibit करते हैं जिसकी वजह से natriuresis होती है कि sodium is lost in the urine. उसके अलावा वाटर इज ऑल्सो पुल्ड अलोंग द सोडियम, तो ये डायूरेसिस भी कहलाते हैं, डायूरेसिस, ठीक है. बेसिकली डायूरेटिक्स है ना, दैट्स द रीजन डायूरेसिस करा रहे हैं. अब लूप डायूरेटिक्स क्या कर रहे हैं, दे लूप आउट कैल्शियम ऑल्सो और यूरिनरी कैल्शियम लॉस को इंक्रीज करते हैं जिसकी वजह से ये ऑस्टियोप्रोसिस कॉज करा रहे थे. क्योंकि इतने ज़्यादा कैल्शियम को ये सिक्रीट कर देते हैं. बट ऑस्टियोपोरोसिस कौन से केस में कॉज कराता है? अगर क्रॉनिक यूजेज है लूप डायरेटिक्स का, देयर इज अ क्रॉनिक यूजेज यू हैव टू टेक इट लाइफ लॉन्ग, तो उसमें ऑस्टियोपोरोसिस करा देते हैं. बट हाँ, अगर किसी को हाइपरकैल्सीमिया हुआ है तो उसको फॉर सर्टेन टाइम पीरियड यू कैन गिव देम लूप डायरेटिक्स ताकि दीज कैल्शियम कैन बी वॉश्ड आउट और द कैल्शियम लेवल्स विल कम बैक टू नॉर्मल एंड देन यू हैव टू ऑब्वियसली स्टॉप लूप डायरेटिक्स. अगर इनका कांस्टेंट यूजेज होता रहे, क्रॉनिक यूजेज, देन दिस कैन लीड टू ऑस्टियोपोरोसिस. थायराइड्स क्या करते हैं, ये कैल्शियम को रीअपटेक करते हैं, सो यूरिनरी कैल्शियम लॉस को डिक्रीज करते हैं. अब इन एक्यूट हाइपरकैल्सीमिया वो तो हो गया ना कि आपने ट्रीटमेंट, फिर ये भी लूप डायरेटिक्स की बात हो रही है. अब when you give thiazide, sodium chloride co-transporter blocks, sodium concentration in cell decreases, it becomes so sodium poor that sodium calcium exchanger starts working very tremendously. Calcium out, sodium into the cell, cell becomes calcium poor, calcium channels begin reabsorbing calcium. I hope you're understanding. अब thiazide क्या है? Hypocalciuric drug. ठीक है, वो कैल्सियूरिक ड्रग था लूप डायरेटिक्स, और थायराइड हाइपोकैल्सियूरिक ड्रग. It decreases the loss of calcium into the urine. In some families, excessive calcium in urine because of bad reabsorption of calcium increase tendency to make calcium renal stones. So in those families जिनमें renal stones, मतलब कैल्शियम reabsorb नहीं हो रहा था, बार बार यूरिन में जा रहा था, तो there are high chances of calcium renal stones. So hypercalcemic patients में भी renal stones के chances होते हैं. So for that very reason, the treatment is thiazide. Thiazide देंगे, कैल्शियम की reabsorption enhance होगी in those people and in those families जिसमें ये जो कैल्शियम के channels थे वर्क नहीं कर रहे थे, कैल्शियम reabsorption नहीं हो रही थी, उसमें it's important to give them thiazide ताकि कैल्शियम की reabsorption हो और कैल्शियम के renal stones बनने कम हो, right? मूविंग फॉरवर्ड, दिस इज अबाउट द इंटरकलेट. अब हम आते हैं डिस्टल कॉन्वोल्यूटिब्यूल के लेट सेगमेंट पर जिसमें वी टॉकिंग अबाउट इंटरकलेटेड सेल्स एंड प्रिंसिपल सेल्स. प्रिंसिपल सेल्स विल कवर इन द लेटर वीडियो. अभी लेट्स फोकस ऑन द इंटरकलेटेड सेल्स. इंटरकलेटेड सेल्स का काम एक ही है, which is proton secretion, and that's it, we are done. Just kidding, let's not wind up the lecture here. I'll explain this to you and then हम वाइंड अप कर सकते हैं. इसमें बस यही काम है ऑनेस्टली कि प्रोटॉन सिक्रीट करते हैं. अब होता क्या है that this is basically very important proton ATPase active transporter and it is very powerful. हम किसकी बात कर रहे हैं? इसकी, ठीक है. So this is proton ATPase which is active transporter and this is very very powerful. ये प्रोटॉन को बाहर secrete कर देगा. अब in our body we have carbon dioxide and water. How do they come together? With the help of carbonic acid. ये सब कुछ बना, प्रोटॉन एक्टिवली secrete होगा और बाइकार्बोनेट इधर रहेगा और बाइकार्बोनेट चले जाएगा. Also, there's something else. You also need something else with the bicarbonate ताकि दोनों combine हो. So potassium bicarbonate or sodium bicarbonate. What do you prefer? Our body prefers potassium bicarbonate. तो हमारे पास पोटेशियम के channels हैं, पोटेशियम अंदर जाएगा, इधर से निकलेगा और पोटेशियम बाइकार्बोनेट will be in the blood. And also this is exactly the same thing that was happening बिल्कुल initially जहाँ यहाँ हम कहीं हमने प्रोटॉन्स को सिक्रीट करे थे और बाइकार्बोनेट को we had to conserve in the body और इंटरस्टिशियम में जाया था. तो बाइकार्बोनेट we need to conserve in the body और इंटरस्टिशियम में जाए, उसको हमने प्रोटेक्ट कर लिया पोटेशियम की कैप लगाकर. जबकि प्रोटॉन्स को हम सिक्रीट कर रहे हैं और इसको जब सिक्रीट करेंगे दिस इज वेरी डेंजरस, यू नीड टू पुट इट इन अ बास्केट. इसको इस तरह ही नहीं सिक्रीट कर सकते. तो हमारे पास वी हैव, जब फिल्ट्रेट आ रहा होता है तो उसके अंदर हमारे पास ये और ये होता है ना. हाउ डू यू रीड देम? दिस इज मोनोबेसिक, मोनोबेसिक है और ये डायबेसिक है. इसकी चार्ज आई एम सपोजिंग मस्ट बी टू नेगेटिव, तभी ये डायबेसिक है. तो दिस इज डायबेसिक एंड दिस इज मोनोबेसिक, ठीक है. यू मे बी वंडरिंग कि ओ ये टू लिखा है ये लिखा है, इट्स उल्टा नहीं, लेकिन इट डिपेंड्स ऑन द चार्ज. सो दिस इज मोनोबेसिक, चार्ज को देखें, दिस इज द डायबेसिक फॉस्फेट. तो ये फॉस्फेट्स आ रहे हैं एंड दीज विल कंबाइन विद द प्रोटॉन.
एंड यूजुअली होता क्या है कि ये जो आपका डाई बेसिक फॉस्फेट है ना, दिस गेट्स कन्वर्टेड टू मोनो बेसिक फॉस्फेट। तो अ, जो एसिडोसिस के पेशेंट्स होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा यहाँ से एसिड निकल रहा होता है, और उनमें बहुत ज़्यादा डाई मोनो बेसिक फॉस्फेट भी दिखेगा यूरिन में। सो दैट्स वन वे टू टेस्ट कि यूरिन में बहुत ज़्यादा मोनोबेसिक फॉस्फेट दिखेगा उनकी यूरिन में, राइट। अदर देन दैट अमोनिया इज ऑल्सो देयर, जो कि अमोनियम आयंस में कन्वर्ट होता है, तो अमोनियम भी बहुत ज़्यादा उनकी यूरिन में दिखेगा एसिडोसिस के पेशेंट्स में। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसको फ्रीली नहीं छोड़ सकते, यू हैव टू पुट इट इन अ बास्केट, इन दोनों के साथ कंबाइन करके, एंड देन इट्स secreted out. So these are basically the trappers. अब वेरी इंपॉर्टेंट कि क्या ये जो कार्बोनिक एनहाइड्रेस है, इट्स वेरी सेंसिटिव टू बॉडी पीएच, तो ये डिटेक्ट करता है बॉडी की पीएच को। अगर एसिडोसिस हो, मतलब प्रोटॉन ज़्यादा है, तो ये बहुत ज़्यादा स्टिमुलेट होगा, एंड दिस विल प्रोवाइड अ लॉट ऑफ बाइकार्बोनेट टू द बॉडी, and more acid will be excreted in urine. So that's how this is very sensitive to body pH. अब इन पेशेंट्स के अंदर ज़्यादा ये क्या है, मोनोबेसिक, इसकी अगेन लेट्स डू द करेक्शन। मोनोबेसिक इनमें जो है व्हाट यू कॉल देम, फॉस्फेट ज़्यादा होंगे इनके यूरिन में, और इवन अमोनियम आयंस भी ज़्यादा होंगे, जबकि जो डाई बेसिक हैं वो कम होंगे। These cells are very important to handle acid base balance. कौन से cells exactly? These cells, ठीक है, intercalated cells. So if they talk about intercalated cells, इसको तो मुझे highlight ही करना चाहिए कि these cells are very important to handle acid base balance. Whenever you're talking about intercalated cells, you'll know ये acid base balance handle करते हैं, इनका काम सिर्फ प्रोटॉन के इर्द गिर्द रोटेट कर रहे हैं, right? So that's about it.